एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडीज विद मोहित सक्सेना। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड पर एक फिगर बना रहा हूं। दिस इज ए बी सी। This figure basically contains three sides AB, BC and AC. Sides are AB, BC and AC. Corresponding angles, angle A, angle B and angle C. Angle A, angle B, angle C. Such type of figures are known as triangle. तो triangle होता क्या है? Triangle is a two-dimensional geometrical figure. It is a two-dimensional geometrical figure. Triangle is a polygon. It is a polygon with three sides and three angles. As you can see, three sides AB, BC and CA, and three angles are angle A, angle B, angle C. Now let's move to the types of triangle. Types of triangle. Basically, triangles are classified into two different categories. First one is on the basis of their sides, as you can see AB, BC and AC, and second one is on the basis of their angles. So on the base, triangles are classified into basically two broad categories. First one is on the basis of their sides, and second one is on the basis of their angles. अब ये फर्दर इन टू कैटेगरीज के बाद भी आगे डिवाइड हो जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस, and third one is scalene triangle. On the basis of angles, triangles are also divided into three parts. First one is acute angle triangle, second one is right angle triangle, and third one is obtuse angle triangle. ऑब्ट्यूज एंगल. अब इन टाइप्स के बारे में, ये क्या होते हैं, इन सभी का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में जो भी डिवीजन थे ट्रायंगल्स के वन बाय वन, उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दिस इज ट्रायंगल ABC in which AB is equals to 2 centimeter, BC is equals to 2 centimeter and AC is equals to also 2 centimeter. All sides are equal to each other. Such type of triangles are known as equilateral triangle. Equilateral triangle का एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए.
area of equilateral triangle. A is equals to under root 3 by 4 multiplied by side square. This is the formula to calculate the area of equilateral triangle. अब जैसा आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स कितनी है 2 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? A is equals to under root 3 by 4 multiply by side is equals to 2 centimeter, 2 square under root 3 by 4 into 4, 4 से 4 cancel, under root 3 centimeter square is the area of this triangle. इस तरह से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आता कहां से, इसका डेरिवेशन हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे. नेक्स्ट इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल. Second one is isosceles triangle. Such type of triangle having 2 equal sides out of 3. देखिए हम डिजाइन करते हैं यहाँ पर. कुछ इस तरह का, ये साइड इसके इक्वल है, P, Q, R. ये से this is 5 centimeter, then this is also 5 centimeter, this is your 8 centimeter unequal side. So in isosceles triangle 2 sides are equal out of 3 sides, and opposite angle to these sides are opposite to this angle, opposite to this side, this angle. These two angles are equal because their opposite sides are equal. So isosceles triangle having 2 equal sides, 2 equal sides out of 3. इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ isosceles triangle is given by A is equals to 1 by 2 under root A square minus B square by 4 into B. This is the formula to calculate area of isosceles triangle, where A is your length of equal sides. Say, as you can see here, PQ and PR are equal sides, so A is equals to 5 centimeter. A is your length of equal side. B is your length of unequal side, or in short you can say this is your base length. इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को. A is equals to 5 centimeter and your base is equals to PQ is your base, QR is your base, this is 8 centimeter. B is equals to 8 centimeter. Substitute these values in the given formula, then area is equals to 1 by 2 under root 5 square minus 8 square by 4 into 8. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 1 by 2, दिस इज योर 25 minus 64 by 4, 16, 25 minus 16 is your 9 under root 9 cross 8. So लिख देते हैं 1A is equals to 1 by 2 under root 9 equals to 3 into 3 into 8. 2 4s are 8. A is equals to 12 centimeter square. In this manner, you can calculate the area of isosceles triangle. Next one is your scalene triangle. Such type of triangle having all sides unequal. All sides are
अनइक्वल। अगर साइड्स अनइक्वल है तो इनके एंगल्स भी अनइक्वल ही होंगे। एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल। एक बोर्ड पर ट्रायंगल बनाता हूं, A B C. Suppose this is your 2 centimeter side, this is your 3 centimeter side, this is your 3, 4 and 5 centimeter. This is your 3 centimeter side, 4 centimeter and 5 centimeter. As you can see, all the sides are unequal. Such type of triangles are known as scalene triangle. इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो कि है हेरॉन्स फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, आप हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी तरह के ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, वेयर A, B एंड C आर लेंथ ऑफ साइड्स। A, B and C are length of sides. अब आपने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा A इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, वेयर A, B, C आर लेंथ ऑफ साइड। S इज योर सेमी पैरामीटर। आपको सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करके बस वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। A is equals to 3 centimeter, suppose B is equals to 4 centimeter and C is equals to 5 centimeter. एरिया पहले सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। S is equals to 3 plus 4 plus 5 by 2, this is equals to 5.93, 12 by 2, 6 centimeter. अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। A is equals to अंडर रूट 6 माइनस 8 यानी कि 6 माइनस 3, S माइनस B 6 माइनस 4, S माइनस C 6 माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 इंटू 1, अंडर रूट 6 क्रॉस 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं एंगल्स के बेसिस पर। एंगल्स के बेसिस पर भी 3 टाइप्स में डिवाइड हुए थे आपके ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करेंगे। एरिया ऑफ, दिस इज नंबर 4, area of right angle triangle, area of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए आप सभी बोर्ड पर मैंने ड्रॉ करा है एक ट्रायंगल जिसमें दिस इज योर A, B, C। CB is perpendicular on AB, perpendicular मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल स्टेन हो रहा है। CB is perpendicular on AB, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री पर होता है। इसके सामने जो साइड होती है हमेशा 90 डिग्री के लार्जेस्ट साइड होती है या लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, जिसे आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो नीचे होगी, अगर आप ध्यान से सुनिए सभी, यहाँ पर आपने थीटा एंगल कंसीडर करा है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। थीटा आपने यहाँ कंसीडर करा है एंगल ए पर, तो ये आपका बेस होगा एंड दिस इज योर हाइट। मैं एक और ट्रायंगल बनाकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 90 डिग्री है, अगर इस बार मैंने थीटा सी पर लिया है तो आपका ये हाइट होगा और ये बेस हो जाएगा। बेस और हाइट इंटरचेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक की बात कर ली हमने। इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
अभी आपको बस हाइट ऑफ बेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पर होता है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसीलिए मैंने बोला कि आपको एरिया कैलकुलेट करते हुए थीटा का ध्यान नहीं रखना है। थीटा यहाँ हो या यहाँ हो, बेस और हाइट आपस में इंटरचेंज होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो एरिया कितना होगा, D is equals to 4 centimeter, H is equals to 3 centimeter. Then the area of the right angle triangle is A is equals to 1/2 into base into height, that is your 4 into 3. 2 to the 4. Area is equals to 6 centimeter square. In this manner, you can easily calculate the area of right angle triangle. Now discuss करते हैं आप acute angle और obtuse angle triangles को। आते हैं फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में, जो कि था आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आप लोगों को पता होगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो वो एक्यूट एंगल में काउंट होता है। तो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, आपके पास जितने भी एंगल्स हैं, जितने क्या 3 ही एंगल्स होते हैं हमारे पास, तीनों एंगल्स लेस देन 90 होंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनाया हमने। ये मान लीजिए 60 डिग्रीज है, ये भी 60 डिग्रीज है, ये भी 60 डिग्रीज है। सभी एंगल्स लेस देन 90 है, तो ये आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल भी है, सारे एंगल्स ही इक्वल है, तो आपकी सारी साइड्स भी इक्वल है, इसलिए ये इक्विलैटरल भी होगा। तो आप बोल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। एक्यूट एंगल तो आपको फॉर्मूला पता ही है, आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक्यूट एंगल में क्या होगा, कभी कभी ये सारे एंगल्स इक्वल भी होंगे, कभी हो सकता है सारे इक्वल अनइक्वल हो। मान लीजिए सपोज दिस इज योर 40 डिग्रीज, दिस इज योर 60 डिग्रीज, 40 60 100, दिस इज योर 80 डिग्रीज। अब ये सभी एंगल्स अनइक्वल हो गए, मतलब ये सारी साइड अनइक्वल हो गई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस केस में ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है, स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके। अब आप मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल है। ये 50 है, ये 50 है, 50 50 100, ये 80 है। अब दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल है, एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये वाली साइड अनइक्वल होगी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी इक्वल टू ए सी होगा और बी सी अनइक्वल साइड होगी। तो ये किस तरह काम कर रहा है, आइसोसेलेस की तरह, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इसमें दो साइड्स इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तो एक्यूट एंगल में यही 3 केस होते हैं, एक तीनों एंगल्स इक्वल हो, कोई भी दो एंगल इक्वल हो, या फिर एक भी एंगल इक्वल ना हो, बट सारे एंगल्स होते हमेशा लेस देन 90 पर है। नेक्स्ट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो। मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास कुछ इस तरह, जिसमें ये वाला 120 है, ए बी सी, ये आपका 120 30 150 और 30 180, ये दोनों 30 है। इसमें भी आपको वही यूज करना है लॉजिक जो हमने साइड्स के बेसिस पर एरिया कैलकुलेट करना सीखा है। दोनों साइड्स इक्वल है, सॉरी दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये वाली साइड अनइक्वल होगी, तो ये कौन से ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है, आइसोसेलेस की तरह। अगर
ये 120 है, ये मान लीजिए आपका 40 होता और ये 20 होता, तो तीनों एंगल्स अनइक्वल हो जाते हैं। देखिए अगर ये 120 है, इसे 120 रहने दीजिए, यहाँ पर 40 कर लीजिए और इसे 20, तो 120, 140, 180। अब ये तीनों एंगल्स अनइक्वल हो गए। इस केस में सारी साइड्स भी अनइक्वल हो जाएंगी, हमारी सारी साइड्स अनइक्वल हो जाएंगी, तो अब ये स्केलिंग ट्रायंगल की तरह एक्ट करेगा। कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह एक्ट नहीं करता है, वो या तो स्केलिंग ट्रायंगल होगा या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से आप इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स के लिए एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए तो अब वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने सभी तरह के ट्रायंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करना सीखा है बहुत इजी मेथड के साथ, और जो भी फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशंस को हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करें।